Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Pakistan Experience. Last week was quite difficult for most of us, me including. I think the news of Sushant hits people very hard. I didn't follow his work, but celebrity suicides in particular can be quite triggering. So I really wanted Dr. Atiya Naqvi to come here with us to have this conversation. How are you doing? Assalamu alaikum. I'm doing very well. Thank you for having me. And disclaimer, I'm not a doctor. I'm just a clinical psychologist. So you can call me Atya. वालेकुम अस्सलाम. आते ही मैं जलील हो चुका हूँ. So what's a psychiatrist as a doctor? Is that the distinction? Well, if I was a medical doctor or if I were a PhD in my field, and I'm neither, I'm a master's and with a lot of years of experience, but that doesn't make me a doctor. अब मैं आते ही बिल्कुल नहीं हुए हो तुम जलील बिल्कुल नहीं हुए हो तो मैं तुम्हें इज्जत दी. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक दैट्स रियली गुड. तुमने मुझे इज्जत दी. आई थिंक वो जिस तरह ऑनररी डिग्री देते हैं ना स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज वाले, आई थिंक आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि एट दिस पॉइंट गलत नहीं होगा. आई एम ट्राइंग टू डू एनी सेव दैट. चलिए फिर सर आंखों पे ले लेती हूँ मैं. आगे बढ़ते हैं. So it's good that we start off on a lighter note because things might get heavy. Trigger warnings for people. तो आपने भी न्यूज़ देखी होगी and like even though हमारे दोस्त नहीं हैं, हमारे यार नहीं हैं, they're just celebrities. I think it just has a huge impact. Even अगर हमने पहले क्रिस कॉर्नेल का देखा था वाकया, चेस्टर बेनिंगटन का देखा था, it just takes such a heavy toll on people. So what does one do to protect themselves when things like this happen? I don't know, Shazad. Why do we need to protect ourselves? I think that is the first issue that we have, that we want to live in ways where no negativity would touch us. And that is what makes us so weak. I think the strength lies in knowing our ability to go through shit, to go through ordeals, and having a repertoire of resources and knowing whether it could be faith, whether it could be information. मगर ऐसे हम भागे फिरेंगे अगर कि कहीं से डर ना लग जाए, कहीं से कोई चोट ना लग जाए, तो अपना तो इम्यून सिस्टम हर चीज हम लोग खुद अंडरमाइन कर रहे हैं. But it's like, so like for instance, if we take it like corona, right? Should one be healthy? Absolutely. Should one not have compromised immune systems? Absolutely not. But sub 60%, 70% capacity पे चल रहे हैं and they're healthy and they're going to try and avoid corona. It's not मतलब जाकर सर तो नहीं मारेंगे. So उसी तरह even with mental health, everybody with their own coping mechanisms have found a way to function, whether that is knowing what their triggers are, avoiding them, and किसी ना किसी तरह वो फंक्शनैलिटी की तरफ आ गए. तो वो जो आपने अपने पर एक बबल भी बनाया हुआ होता है प्रोटेक्शन का, उस पर कोई प्रिक करता है तो चीजें थोड़ी मुश्किल तो हो जाती हैं. बिल्कुल हो जाती हैं. एंड सो जैसे तुमने कहा कि इन केस ऑफ कोरोना हम उस पर सर नहीं मारेंगे, हम अपने को अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे. क्योंकि whether we like it or not, the world is right now riddled with a disease, and it's really impacted our way of life. तो उससे भाग नहीं सकते, उसके लिए प्रोएक्टिव होना होगा, उसके लिए इन्फॉर्म होना होगा. एंड उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात ये शहजाद कि हम अपने बच्चों को या अपने यंगस्टर्स को डील करना तो सिखाएं कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंज आएगा और फेल हो गए तो किस तरह से निपटेंगे उससे. वो कॉन्वर्सेशन नहीं होती. Coming back to celebrities and why they trigger us, how they trigger us, they represent a very perfect visual of a life that we all aspire to be like, whether it's their bodies, whether it's their lives, the cars, the lifestyle. And then when they turn out to be human, hurting, suffering, तो हर किस्म की अच्छाई से कुछ ईमान उठ सा जाता है. फिर ये होता है कि फिर what is real and what is not real. But the fact is, everything जिसकी हम बात करते हैं real or not real is subjective. खुश होंगे तो कॉमेडी अच्छी लगेगी, खुश नहीं होंगे तो कहेंगे यार ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं. It's subjective. It is very subjective. So it all comes down to कि हमारे frame of minds क्या है.
मैं बहुत दफा बात करती हूँ जब हम बच्चे पाल रहे होते हैं एज पेरेंट्स एंड मोर देन दैट एजुकेशन सिस्टम्स, हम बात ही नहीं करते कि अगर मार्क्स खराब आए तो क्या करोगे बेटा, ये सब्जेक्ट नहीं पसंद आ रहा, हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू इट। वो तो एक मेनिसिंग सी वो होती है, फेल हो गए तो देखना जिंदगी जाया। सो वी आर subliminally planting the thought that if you can't get through to this, you're doomed. We are actually injecting uh, gloom and doom and such a high bar in this world. उस तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता। जो माँ बाप, जो टीचर्स कह रहे होते हैं ये लेकर आना है, ए स्टार लाना है, खुद लाए थे, खुद हमने सेट में वो किया था, खुद हमने वो लेवल्स में स्कोर्स किए थे, बट वी कीप पुशिंग एंड पुशिंग फॉर परफेक्शन। परफेक्शन तो सिर्फ अल्लाह की जात में है, बाकी कोई चीज अगर परफेक्ट है तो वो सिंथेटिक है, इट कांट एवर बी रियल। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जिम कैरी का भी एक बहुत अच्छा कोट है कि आई विश एवरीबॉडी गेट्स रिच एंड फेमस सो यू नो दैट इट्स नॉट द आंसर। कि लोगों को लगता है खुशी नहीं है तो वो एक्सटर्नली कुछ होगा तो मैनिफेस्ट होगी कि यार अच्छा बस ए आ जाए तो जो अंदर से एक होल फील हो रहा है वो फिल हो जाएगा ए स्टार से, या वो फेम से फिल हो जाएगा, वो खुशी से हो जाएगा। once you get there and realize those are not the answers, but it's also that people who might be struggling, right? Like for instance, I've also had suicidal thoughts, I've dealt with them and I'm in a much better place mashallah right now, but when you see it happen, it's एक allure भी तो होता है for somebody who's had those thoughts and has combated them and is like no, I choose life. So when you see it, it's like वो जो call of the abyss वाली है कि oh, it's you're almost reminded कि ये ejector seat exist करती है. Yes, absolutely, and that's a very brave thing for you to say, and I thank you for that. It's really, really brave. But is it an abyss or is it a lure or is it a reminder? Reminder यूं के जिसने डिप्रेशन में वक्त काटा होता है, जिसने वो you know उस अंधेर नगरी में वक्त गुजारा होता है, वो आपका कंफर्ट जोन होता है। तो ये ऐसा ही है कि आपने एक सेल में, एक काल कोठरी में 15 साल जिंदगी के गुजारे, 10 साल गुजारे, और अब आप निकल गए और ताजा हवा में आ गए। कभी कभी फिर भी वो कोठरी याद आएगी, कभी कभी वो, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन भी रही है। अगर उसमें आपने जब तक आप उसमें रहे, आप उससे भागने की जुस्तजू करते रहे, लेकिन रहे तो ना। और उस वक्त की जो एस्केप थी कि मैं इस कोठरी से निकल जाऊं, लेकिन ये भी एस्केप है कि कोठरी से ऐसा निकलूं कि कभी भी ना आ सकूं। दैट इज दैट allure, दैट इज दैट invitation to end your life. But ending of our life, and I've gone through that through my son, it's a, who knows, is there a guarantee, is there a guarantee that everything will end? यहाँ पे एफर्ट का ऑप्शन तो लगा है ना, एफर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, अभी भी ऑप्शंस तो हैं कि आप शायद जिंदगी बेहतर हो जाए, और होगी, क्यों नहीं होगी, इफ यू बिलीव इट। अगर आप मर भी रहे हैं तो ये सोच के मर रहे हैं, कोई बिलीफ ही है ना कि मैं बेहतर हूँगा, उस बिलीफ को अपनी लाइफ इंस्टिंक्ट की तरफ भी तो लाया जा सकता है। It's I agree with you, and I think once you fight that feeling and come out of it, it makes sense to you कि छोटी चीज़ों में भी खुशी आनी शुरू हो जाती है कि ठीक है, if something big isn't happening, you take a hot shower, you eat a nice meal, that's also something worth celebrating. Or you meet a friend and you're like, oh, I'm so happy I was alive at this moment. But जब आप जो वो अंधेर नगरी या काली कोठरी की बात करें, उसमें कोई आके आपको बोले कि नहीं, you know, believe in it, and you're like यार how you just वो बात आपके अंदर ही नहीं जा सकती, राइट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप मैक का सिस्टम है और कोई विंडोज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, आपके अंदर है ही नहीं वो कैपेबिलिटी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस वक्त भी जिस तरह तुमने कहा ना, छोटी चीजों से, जब आप हॉट शावर, उस वक्त आप कोई आके आपको मैक का सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर सकता, लेकिन काल कोठरी में आके कोई कहे ये जरा सी हवा कहाँ से आ रही है, कोई भी दरवाजा जरा सा खुलता है, थोड़ी सी रोशनी आ जाए, उस वक्त सिर्फ इतनी जरूरत होती है, टाइनी स्टेप्स, nowhere
nowhere can we ever get to a position, jackpot भी लग जाए, लॉटरी भी लग जाए, तो भी उसके बाद के स्टेप्स तो लेने पड़ते हैं. कोई भी चीज बगैर प्रोसेस की नहीं होती, और वो वन ऑफ्स हैं. डे टू डे जिंदगी हम गुजारते हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके. अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप रोज स्कूल जाते हैं, टेस्ट देते हैं, इम्तिहान के लिए पढ़ते हैं. एकदम से डिग्री हाथ में नहीं आ जाती. रिश्ते होते हैं, निभाने होते हैं, ऊंच नीच. मेरे कहने का सिर्फ ये मकसद है शहजाद के जिसको हम कहते हैं ना कि किसी चीज की इटियोलॉजी ढूंढते हैं कि ये इतना डिप्रेशन, एंजाइटी और यंग लोगों में ज्यादा है बनिस्बत ओल्ड लोगों के. तो क्या वजह हुई कि अब जो है ये चीज, पैंडेमिक कोविड तो अब आई है, बट मेंटल हेल्थ एंड 2019 वाज नोन टू बी द ईयर ऑफ सुसाइड बाय WHO. तो क्या वजह हुई? वजह ढूंढेंगे, सोर्स ढूंढेंगे, वरना हम स्टॉप गैप मेजर्स करते रहेंगे. दवाइयां दे दी, एंटी डिप्रेसेंट्स पे दे दिया, रिहैब में भेज दिया, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं करते रो पीट के बैठ गए. आई एम ट्राइंग टू से व्हाट इज द रीजन. And the reason is, the first and foremost reason is that we are not ready to deal with negativity. मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ और अपनी ऑडियंस से पूछती हूँ. आपने अपने ऊपर बड़ा काम किया, आपने अपना मूड भी ठीक किया, हॉट शावर लिया, अच्छा खाना खाया, सब्र और शुक्र किया, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, whatever. आपने कमरे से बाहर निकले, आपकी अम्मी, आपका भाई, आपकी बीवी मुंह लटकाए बैठे हुए. आपकी सड़ जाएगी. क्या हुआ भाई? कंपैशन नहीं आएगा. क्या हुआ? उन्होंने अगर ये कह दिया, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, मुझे नहीं बात करनी. So first thing you may encounter, or a lot of us may encounter, will be either terror, परेशानी, concern, अच्छे अगर अक्लमंद लोग हैं, और या बेजारी के हर वक्त इनका मुंह लटका रहता है. लो भाई अब इनको संभालो, अपना मूड इतनी मुश्किल से ठीक किया. So there is a lack of acceptance for negativity. There is a lack of acceptance. हमने वो फिल्टर्स बनाए ही नहीं है कि हम रियलिटी के साथ जिंदगी को समझ सके. हम एक अवॉइडेंट लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं. मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ, ओ प्लीज पुट हैप्पी पोस्ट्स, एंड देन वही शख्स ये भी डाल रहा होता है, लेट्स हेल्प विद मेंटल हेल्थ. हैप्पी, हु इज ऑलवेज हैप्पी? दैट्स कॉल्ड मैनिक स्टेट. इफ यू आर ऑलवेज हैप्पी, आप 24 घंटे हंस तो नहीं सकते. नींद भी आएगी, थकन भी होगी, गुस्सा भी आएगा, रोना भी आएगा, हंसी भी आएगी. That is being human. That is being human, and we had forgotten to be human. My second point would be that we have put all our resources into externalizing ourselves. कि जो बाहर की expectations है, बस अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा होना है तो स्पोर्ट्स में अच्छा होना है, बॉडी शेप ऐसी होनी चाहिए, शक्ल कॉम्प्लेक्शन वैसा होना चाहिए. ये किसने पार्ट्स बनाए? कभी गौर किया कि तुमको खुद अपना आप कैसा लगता है? तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है या एक्सटर्नल? और अगर सिर्फ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा तो अंदर से तो आप खोखले से खोखले होते जाएंगे, हल्का सा धचका भी शायद आपको टिप कर देगा. I agree with you, but I think audience भी जो है हमारी वो काफी रेंज में होती है, and unfortunately जो हमारे पेरेंट्स की थोड़ी जनरेशन है, they don't understand that life is not the same for children, right? And मैं एक mental health पैनल में बैठा हुआ था और एक साइकोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है, एंड आई एम श्योर उस दिन कुछ उनका मूड हो गया या उन्होंने गलत कॉन्टेक्स्ट में हो गया या मैं गलत समझा. आई डोंट वांट क्वेश्चन एनीथिंग दैट शी इज डन इन द पास्ट, बट ऑफ द कफ उनकी एक स्टेटमेंट थी कि आजकल के बच्चों को किस बात का डिप्रेशन है, उनके तो जेब में फ़ोन है, दे हैव द वर्ल्ड एट देयर फीट, एन अपॉर्चुनिटी वी डोंट हैव. And a lot of the parents sitting there, T2F पर, they were like, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच्चे तो गलती इनकी है, इनको क्या है. Whereas they might not realize कि ये जो rectangular box है, आधा मसला तो यही है जो आप भी कह रही हैं कि external, right? कि I don't feel validated, I don't feel loved because मेरे Instagram post पे 70 likes आए instead of 700.
एंड आई हैव, जो मेरा आप लोकस की बात करिए, मैंने अपना लोकस इसको दे दिया है कि इस पे जब लाइक शेयर आएंगे तो मुझे फील होगा, जी वो टिंग टिंग बिल्कुल। करेगा. सो लॉट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, जो पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, उनको भी बता दें कि उनके लिए लाइसेंस नहीं है कि हाँ बच्चों की गलती है उनको जाके मारे. मैं सबसे पहले पेरेंट्स को ये कहूंगी, बीइंग अ पेरेंट एंड हु हैज सफर्ड एज इंसान, एज तो इस दुनिया का एक नंबर है ना शिजा, पर वी आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग. हर वक्त हमारे जिस्म में लाखों सेल्स बन रहे हैं, लाखों सेल्स जाया हो रहे हैं, और यू नो, सो वी आर अ वेरी डायनामिक ऑर्गेनिज्म. और हम में से जो ये कहे बस भाई हमने सीख लिया जितना सीखना था, हमें पता है, हमें मुझे जो पता है वो शायद 40 साल पुरानी बातें हैं. मैं जिस तरह पली बड़ी हूँ, मैं आज जो जबान बोलती हूँ, जो लिबास पहनती हूँ, बिकॉज मैंने अपने माहौल से सीखा है. अब हमारे बच्चे जिस माहौल में है वो एक छोटा सा माहौल नहीं है, वो एक ग्लोबल माहौल है. So it's an onslaught of stimuli, it's an Yeah. onslaught of information that we didn't have. So we may never understand you all, but I have no problem saying कि भाई हमें भी सिखाओ, हमें बताओ, talk to us. Because one thing that I can say, चाहे वो parents डांट रहे हैं, कुछ भी करें, there is no two things about how much they love their children, but language of love has changed. Language of caring has changed, and we, instead of promoting a modern language, we are still sticking to a very obsolete language. मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात कहती हूँ, I love you कितना सिंपल हो चुका है, हर कोई चलते फिरते कुत्ते बिल्ली को भी कह रहा है. उर्दू में क्यों नहीं आया? उर्दू में हम क्या कहेंगे अपने बच्चे को, अपनी अम्मी को? मैं क्या आपसे कहोगे? प्यार करता हूँ. Is it flowing as easily as I love you? No, it's not. My point. We're not cultivating culturally. It has to, really grow onto our bodies, into our limbs, into our systems, to work with compassion, with love. सिर्फ किताबी बातें करना कि सुन ले, मेंटल हेल्थ की बात कर, एंड क्योंकि मेरी उम्र इतनी है कि मैं पुरानी बातें भी जानती हूँ, उसी तरह पली बड़ी भी हूँ, और कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों से, तुम सबसे सीखते रहूं. So I think, and as a psychologist, negativity comes to us very automatically. The first emotion is fear, which is felt by a newborn. So negativity, fear, anxiety comes to us very organically. In order to work around it, to overcome it, negativity, anger, sadness पहले 3 हैं, और उसके बाद joy, peace, and उसके लिए हमें काम करना पड़ता है. काम करने के लिए हमें पता होना चाहिए ये चीज से मुझे गुस्सा आएगा, ये चीज से मुझे डर लगता है, ओहो मुझे इस वक्त डर लग रहा है. The ability to call out and know, this is called mindfulness. As a माँ also, as a parent also, जजमेंट अगर आ गई, इनको किस चीज की डिप्रेशन है, इनके पास तो फोन है, इनको तो गाड़ी मिली रहती है, तो ये क्या है? ये हमारी अपनी प्रोजेक्शंस हैं जो हमें चीजें नहीं मिली, और हमने सोची थी हमारे पास ये होता तो हम तो दुनिया में बड़े खुश होते. वो हम थे 40 साल पहले, और अब के जो बच्चे हैं उनकी तरजीहात, उनकी ख्वाहिशात, एंड दैट्स व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस है. कि आप खुद क्या सोच रही हूँ, मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ, मेरे सोचों के अल्फाज कैसे हैं अपने लिए, और मेरी जो भी सोचें या मेरा बर्ताव है वो मेरे इर्द गिर्द के माहौल पे किस तरह असरअंदाज हो रहा है. So coming back to the example that I gave earlier, whether it's the death of a celebrity, or whether it's me walking out of my room and finding a family member morose or depressed, मुझे पता होना चाहिए अब मुझे गुस्सा चढ़ रहा है और मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, मैं सोशल मीडिया बंद करी हूँ, मुझे कोई सुसाइड की न्यूज नहीं सुननी हो. This is telling me, am I being avoidant, or am I being, compassionate? ये और खुद ही पता चलेगा, कोई बता नहीं सकता. we're going to learn. अच्छा, करीबी रिश्तों में जो कि फौरन इम्पैक्ट आएगा जिसका इर्द गिर्द के माहौल पे, कि अगर अपने फैमिली मेंबर पे गुस्सा आ रहा है, गुस्से से कोई बेहतरी आएगी? और मैं आपको एक और बात देती हूँ.
अच्छा अभी इनके मैंने लाड प्यार कर लिए, इनका तो हर वक्त मुंह चढ़ा रहेगा, इनसे शादी कौन करेगा, इनका तो गुजारा कहाँ होगा. आई थिंक इन्हीं बातों से काफी लोग ट्रिगर हो गए होंगे ऑलरेडी. ऑलरेडी देयर लाइक So what I'm इससे saying तो is we हमारी are not. सारी यादें बुरी सारी अटैच इन्हीं बातों से हैं. But the thing is, we are not able to stay in the moment. We are jumping into the angst of the future. We are jumping into the teachings of our past. But इस moment में मैं भी invisible हो गई because I didn't. This is, I'm not existing. Existentialism क्या है? To exist in the moment. And how many times do we actually exist in the moment? जस्ट टू क्लैरिफाई, आपने पेरेंट्स की बात तो बिल्कुल सही की. एक बहुत अच्छा ट्वीट भी था कि पेरेंट्स गो टू देयर चिल्ड्रन एंड से व्हाट डू यू हैव to complain about, I'm only giving you half the mental trauma my parents gave me. So लेकिन जो आप avoidant की बात कह रही हैं, let's say family, so you have to make it work, relations you have to make it work, but let's say आपका कोई दोस्त है and every time you meet that person and you just feel emotionally drained, is it not the wise thing to do to just be like, yeah, this person is not good for my energies, it's best to avoid this person, or this person might be toxic for me. या इवन सोशल मीडिया कि यार मैं जब इंस्टाग्राम पे जाता हूँ मैं सैड हो जाता हूँ, isn't it best for me कि मैं कम इंस्टाग्राम पे जाऊँ? ओके, दो सवाल पूछे. पहला Sorry. इम्पोर्टेंट ज्यादा है, वो ये कि फैमिली और ये तो यू हैव टू डू इट. देयर इज नो हैव टू. देयर इज नो हैव टू. लेट मी टेल यू दैट यू कैन बी अ, यू नो, आप गिल्ट के साथ रह लेंगे, जो भी होगा. हैव टू नहीं है, ये हमने लागू किया हुआ है. ये लागू किया हुआ है. अल्लाह की इबादत भी हैव टू है, लेकिन इबादत वही अच्छी है जो दिल की रजा से की जाए. हैव टू में की तो आई डोंट नो क्या कहां तक वो पहुंचेगी. दिल की रजा, the will of your heart, and that's what I talk about. So when we start to operate from a will, अब चाहे तुम्हें इंस्टाग्राम करना है नहीं करना है, if it works for you it works for you, if it doesn't work for you, that's internal locus of evaluation. Not because it's good for me, it's bad for me. I don't like it, मुझे नहीं मजा आ रहा. 4 दिन हो गए, चलो आज देखता हूँ. No pressure. Who's told you to do Instagram? Or who's told you to sit and smile at your mother? My mother has. Your mother has, and when she says it, you have to. उस दिन इतना मजा नहीं आता. But if she says, बेटा आओ थोड़ी देर बैठोगे, it's an invite. But I just want to get like a good clarification on the avoidance की जो आप बात कर रही थी. I get that कि चलें अगर मुझे swimming से डर लगता है, मुझे पानी से डर लगता है, the way to overcome that fear is थोड़ा पानी में जाओ. Even if you're fighting the disease, a vaccine gives you a little portion of the disease so that your system gets used to. How do I distinguish के कब avoid करना है या कब slowly overcome करना है? Because some things it's fine to avoid altogether if they're bad for I'll you. tell you something very simple. शहजाद, किसी चीज में should, must, have to आ जाए ना, that's a red flag. You can do a red flag for a short time. You can do a red flag I for did a a few short red flags for a short time. Those for a relations short work out. yes. Imagine, तो आपको पता होता है कि you're doing something but it's not working. Short time, yes, you can do that. But if you then continue to push yourself, that means आप अपने आप को चेक करें कि क्या चीज बॉदर करी. अगर आपको लगता है हैव टू है, ये मेरी बीवी है, उसके साथ मुझे गुजारा करना है, बच्चे हैं, आपने अपने आप को विल से तो हटा के और आप ले गए कि बस सिर्फ जबरदस्ती पे. भाई कोई भी ऐसी चीज है जो कि मुझे इसकी अच्छी लगती है, कोई भी वजह है जो कि वाकई कैन make our marriage work or our relationship work or my subject work, you know. So when we start to look for something from the perspective is positive or the perspective is negative, is the perspective pressurized or is it curious and open? If there is curiosity, intrigue, interest, you may come up with something, you may not. But if it is a have to, if it is a कि नहीं इसमें तो कोई choice नहीं है, तो फिर तो वो चीज बोझ बनेगी ही बनेगी. सुशी पसंद है तुम्हें, मैं तुम्हें रोजाना सुबह शाम रात तक सुशी खिलाना शुरू कर. You will be sick and tired of sushi. The element of choice, Allah has created us to be autonomous.
and it's the autonomy. And तुम्हारा ये जो कि हमें कैसे पता चले कि avoidant हो कि नहीं हो, the answer is, and sometimes I will quote scripture कि अल्लाह ताला कहता है कि इन्नमा अमाल बिन्नियात, every action is guided by the intent, the niyat, right? नियत डर की हो रही है, किस लिए कर रहा हूं मैं अम्मी के साथ क्यों बैठ रहा हूँ, मैं स्विमिंग क्यों सीख रहा हूँ, मैं वैक्सीन की तरफ कदम क्यों बढ़ा रहा हूँ. You will know why you're doing it. What's your reason? And if you have no reason, then you've stripped yourself away of your autonomy. And so you are abusing yourself. You have disempowered yourself. And that, Shazad, I believe, is where we as caregivers are failing. कि हम वो इंट्रापर्सनल इंटरनल लोकस ऑफ एवेल्युएशन नहीं सिखा पाए, और सीख रहे हैं, हम अब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. सीख लोगे because you guys are much smarter than us, much more exposed than us, and you're ready for this kind of information. You all are so ready. मैंने तो खुद नेक्स्ट जनरेशन को अब कर दिया कि यू गाइस आर रेडी. मैंने गिव अप करके, आई एम लाइक, अब जो अगली लॉट आ रही है, दे शुड डू इट. So even if you were a conduit between us and them, you've done a service, haven't you? हाँ, मुझे यही लगता है. It's जो आप बात कह रहे हैं कि it's very important. I think even in therapy, one of the things that I learned very initially, which came as a surprise to me, was my one day my therapist was like, do you look in the mirror and be like, how are you feeling, Shazad? I'm like, मैं पागल थोड़ी हूँ, मेरा दिमाग थोड़ी खराब, मैं क्यों अपने आप से पूछूंगा. But that has really helped. It was a very small tactic, just to be like, oh, how did that make me feel? But a lot of times you might not have that autonomy. Faisalabad mein ek event tha, I did it, and this woman came to me after the event and she's like, what do I do? I'm in an abusive marriage, I have 2 children. How do I improve my mental health? And I was just like, मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, right? Like if you're stuck in a situation like that, it's, even if you know it makes you feel the worst, but आपके पास actual autonomy है ही नहीं to do anything. या अगर आपके financial independence नहीं है. Let me correct that, please. As a psychologist, and you know, नमाज पढ़ते हैं 5 दफा दिन में, ठीक है? And correct me, Atya, don't talk floozy बातें. I'll stop, but there's a point to it. And no namaz is complete without the element of dua. Dua is what do you really want, but and it's the only thing that's in our own language, जिससे हम connect करते हैं अपने आप से कि मुझे चाहिए क्या इस वक्त. 5 दफा दिन में हम रटी रटाई दुआएं करके उठ जाते हैं. अल्लाह मियां माँ बाप को सेहत दे. मैं जिस दिन कोई गोट फंसी हुई होती है, उस दिन हम कहते हैं कि वीजा आ जाए, टेस्ट का रिजल्ट अच्छा आ जाए. This is a great exercise. You know, all religions are there to bring out our best qualities. All this does is कि आप clarity ये रखें, what do I want? अब ये abusive marriage में औरत है, 2 बच्चे हैं, देखने में कोई options नजर नहीं आते, सोच पे तो कोई कदगन नहीं है ना. What would she ideally love to have? If we invite her to think and she says बस इतना हो जाए कि जी मैं इतने पैसे हो, मुझे मेरी पिटाई ना हो, ठीक है? For I don't know what she would say, और या ये कि मैं अपने घर में अकेले रहूं, या ये. But when she allows herself to think that, then her mind starts to, the muscle of our mind starts to function on a planning mode. काश ऐसा होता. फिर कोई opportunity आती है, फिर कोई ऐसी चीज आती है जिसमें कि उसको कोई ऑप्शन मिलता है, whether it's emancipating herself through work, raising her children. So एक गोल आ जाता है, मेरे बच्चा बड़ा होगा तो ये होगा, या मैं अपने मामू से पैसे लूं. मगर अगर आपने अपने आप को बंद कर दिया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आपने अपने रिसोर्सेस को ताले और चाबी में डाल दिया. आपने अपने रिसोर्सेस को ताले और चाबी में डाल दिया शहजाद. You know, 5 times a day, और अगर आप दिन में 2 टाइम भी तुम मेडिटेट करते हैं, if we are just focusing our energies on peace, क्या है ये? It's focus on what works for me, what I would really like to attain. मेडिटेशन में तो हम बैठ जाते हैं आंखें बंद करके.
and to manifest that abundance. It's all there. If 5 times a day, I mean, I'm really true to myself. I want, मैं अपनी बात है, I want कि मुझे अपने गम की थोड़ी सी कमी हो, मुझे सांस आसानी से आए, मेरे बाकी 2 बच्चों का कि जिंदगी खुशियों के साथ गुजरे, मेरे जो भी चीजें अब नाउ अल्फाज मेरे लिए वो रोशनी क्रिएट करते हैं कि अगर मैं उठी हूँ जानमाज से, wherever I've been sitting and I go out, then I would want to be happy for the 2 kids. Then I would try to make them happy because I've got a goal. But if I sat and said, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, इतना बड़ा गम पड़ गया, जिंदगी खत्म हो गई, are these words, is this thought process ever going to take me anywhere? And I know जिंदगी छोटी सी है, so my faith also helps me, and my profession has helped me a lot. I do think faith, meditation, all these things, whatever works for people. I think prescriptive जब लोग हो जाते हैं वो थोड़ा problem होता है, right? Like when people go online and they say कि depression कुछ नहीं है, बस ईमान की कमजोरी है, मैं भी sad था, मैंने नमाज पढ़ी, मैं happy हो गया. You do the same. As long as they're not projecting this कि तुम्हारी गलती है, you're being lazy or you're the problem. वहाँ भी थोड़ी empathy होनी चाहिए कि यार just because going to the gym works for you, if this person can't even get out of bed, you can't push that person to go to the gym right away. Also believing, अब अगर तुम डॉक्टर के पास जाके कहो मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसको नजर तो नहीं आ रहा ना, वो एक्सरे में आ रहा है, अनलेस कि कोई खुदा ना खासा बड़ी चीज, you have a headache, he does give you दवाई ना, बिलीव कर रहा है ना, सुन रहा है ना तुम्हारी बात, ये तो नहीं कह रहा कोई भी नहीं, सर तो अच्छा भला तुम्हारे नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, लाल भी नहीं हो रहा, तुम तो अच्छे भले चलते हुए आए हो, ऐसा करो बाहर जाके कूदना शुरू हो जाओ, तो डॉक्टर्स की दुकानें तो नहीं चलेंगी फिर. It all begins from listening and paying attention and believing each other. Why would anyone say कि मैं बड़ा उदास हूँ, मेरी तो बहुत जिंदगी खराब? What is the reason? कोई ये कह रहा है मेरे टांग में दर्द है, मेरे बाजू में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, कोई 24 घंटे कह रहा है, उसी वक्त कह रहे हैं जब उन्हें दर्द हो रहा है, चाहे रियल चाहे साइकोसोमैटिक. But we're taking that seriously, but we're not taking a mood, a way of thought, behavioral patterns, lack of sleep, उसको हम लोग discard अभी तक कर रहे हैं. I hope we learn. I think it's very important. जी sorry. मैं ये भी कहना चाहूंगी, internal locus of evaluation. अगर आपने किसी को कह भी दिया मैं तो नमाज पढ़ी और मैंने तो जिम गया, मैं ठीक हो गया, तुम भी ये करो, सब कुछ, मैं पूरे दावे से ये बात कह सकती हूँ, अगर आप 40-50% भी अपनी इंसानियत को रिटेन किए हुए हैं, बिकॉज वी आर ऑल गुड पीपल जनरली, आप किसी के साथ ये बात करके आएंगे ना, आपके दिमाग में घूमती रहेगी, बिकॉज उसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ है. You tried to pretend, you tried to give a resolution, but it wasn't received as a resolution from the other side. So आप भी बेचैन से रहेंगे, यार इसके पास जाता हूँ मूड खराब हो जाता है, हर वक्त चूचू करता रहता है, कुछ भी, but you came back unresolved. Now it's up to you whether you want to go or not. I'm not saying that. What I'm saying is, we know something's not right here. And the ability to stay with the right or not is something that we will learn, we are learning, we are teaching. So लोग जो मदद करने जाते हैं, they're also not probably aware of their own issues, right? कि a lot of times लोगों का अपना savior complex के कौन हो जाता है कि यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें कैसे डिप्रेशन हो सकता है. It's almost like they make it about themselves कि मैं ये fix नहीं कर सकता, तो अब this speaks to my insecurities and my issues. So rather than actually figuring out what the other person wants, they're sort of dealing with their own issues और उनके अपने savior complex दूसरे के सदके क्योर करने के चक्कर में पड़ जाते हैं. हाँ, पड़ जाते हैं. Yes. Let's just leave it at that. There's no judgment. हम सब इंसान के बच्चे हैं और but again मेरे काम का तरीका ये है कि अल्फाज हम किसी की हेल्प करने जाते हैं, हेल्प जरूर करें, मगर उसको ये ना सोचें कि वो खुद नहीं कर सकता.
हेल्प का मतलब है दूसरा हर्ट, कंपेनियनशिप, असिस्टेंस, बट इट डज नॉट मीन कि मैं कर दूं तुम्हें नहीं समझ आ रही। सो यहीं पे नियत फिर आ जाती है कि हेल्प की डिग्रीज क्या है। एंड देन इंट्रापर्सनल की जब मैं बात करती हूँ, आप जो भी रोल कर रहे हैं, शायद तुम अभी मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हो, at this point it's very important that you know who you are and what is the purpose of this program. अगर इस वक्त तुम्हारा पर्पस होता कि जी मैं तो कमेडियन हूँ और मुझे हंसाना भी है, then it's very important to set the tone of the language, the tone of the conversation, maybe choice of your guest, any of those things, then you. लेकिन अगर आप मेंटल हेल्थ के हवाले से करना चाह रहे हैं तो गुफ्तगू उसी हवाले से हो रही, आपकी अपनी आइडेंटिटी मोमेंट टू मोमेंट चेंज होगी। यहाँ से उठ के तुम जाओगे, घर जाओगे, दोस्त के पास जाओगे, तो ना तो तुम उस पर प्रोग्राम होस्ट नहीं होगे, उस वक्त you'll be somebody else, you'll be out to have fun. So intention of that moment क्या है, intention of the interaction क्या है, who are you, who is the person you are interacting with. मैं आई एम ए थेरेपिस्ट, मैं भी बाहर जाऊंगी बच्चों के साथ, अगर मैं कहूंगी कि इंटरपर्सनल तरीके से सोचो, हु आर यू, कि अम्मा शट अप, you know they're going to say amma shut up, yeah, stop being a therapist. And yes, it doesn't mean that I am not being respected. It means that my child in that moment wants to interact with his mother. So language changes, the mood changes, the identity is constantly shifting and evolving as we live. ऑन द पॉइंट लैंग्वेज, आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि आप कमिट का लफ्ज नहीं यूज करती हैं। जहाँ भी हम देखते हैं लिखा जाता है कमिट सुसाइड, ऑलमोस्ट जिस तरह कोई क्राइम है। सरजद, खुदकुशी सरजद नहीं होती। कमिट जिस हवाले से सुसाइड के लिए इस्तेमाल होता है, कमिट किया या ये कि इर्तिकाब किया, उर्दू के जो अल्फाज हैं सरजद या इर्तिकाब, ये दोनों आते हैं किसी जुर्म या गलती के उसमें। and I think compassion, acknowledgement, मोहब्बत के साथ जजमेंट, मेरा रब ऊपर बैठा है, वो उसका काम है, मेरा और तुम्हारा तो काम। और जब तक हम जी रहे हैं, हम प्यार मोहब्बत से जी लें। मैं फिर बात ये कहती हूँ, and I say this over and over again, religion, yes, not the rituals, but the philosophy of religion, हर चीज तो हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाले। अब चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप खाना पका रहे हैं, अल्लाह को आप मानते हैं नहीं मानते ये बहस नहीं है, बट इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ supreme power by a very big people who call ourselves Muslims. तो जो मुसलमान ना हो, क्रिश्चियंस हैं, उनका भी अपना कॉन्सेप्ट है, बट लव, कंपैशन, मर्सी तो आपको दुनिया के हर मजहब में मिलेगा। एंड हम जो कि फाइनल मजहब की बात करते हैं, हम हर काम शुरू करना, ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी होती है कि यार इंटरनेट चलता रहे, तुम अभी कह रहे। So we want to do everything with love and mercy. But are we actually executing anything with love and mercy? So sometimes just get difficult, right? कि आप, you can have faith, you can believe in a God, you can have religion, if it helps you, that's great. पर जब और लोग वही रिलीजन इस्तेमाल करके इस तरह की बातें करते हैं जिसमें आपको उनकी इंसानियत पे शक होता है, जिस तरह आपने उसी इंटरव्यू में कहा था कि मौलवी नमाज पढ़ाने से मना कर दिया था, नमाज जनाजा मना, लाइक हाउ डू यू लुक एट समबडी लाइक दैट एंड बी लाइक यार कि अगर इस्लाम एक रिलीजन ऑफ पीस है, आप में इतनी इंसान, हाउ कैन यू से दैट टू अ ग्रीविंग पेरेंट कि नहीं हम नमाज, लाइक उस मोमेंट में टू हैव फेथ एंड स्टिल find love within you is just difficult. It's difficult, but that's where maturity, that can be a goal. ये तो अगर क्लास 2 का बच्चा कहे मास्टर्स करना तो बड़ा मुश्किल है, हाँ है, मगर if you want to eventually do it, you'll do it. There's no rush, but there can be a purpose. So उस मौलवी ने अगर मना किया या नहीं किया,
वो बेहतर नहीं जानता था, कुरान में बार बार आया और वो नहीं जानते, नहीं जानते। इट्स ओके, वी नॉट ऑल ऑफ अस। सो मैं भी शायद इतनी बातें नहीं करती थी अगर मुझ पे गम नहीं पड़ा था। इट्स फाइन, वी आर ऑल ऑन अ जर्नी, बट एज लॉन्ग एज वी वांट टू बी ऑन अ जर्नी, as long as we, you, I, everybody has a purpose, what do I want out of my life, and वो change होता रहेगा, it will be updated like your apps on the phone। तो अभी आपका पर्पस होगा मेरे ओ लेवल्स में नंबर आ जाए, फिर होगा कि मेरी 6 फिगर सैलरी हो जाए, फिर होगा कि ओ आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, ग्रेट, nothing wrong with it, but it's all about yourself, it's not about pleasing others। मेरी सैलरी ऐसी हो दुनिया तमाशा देखे, and there's a problem। मैं ऐसा काम करूं कि सब देखें, then there's a problem। You do it for yourself, whatever you want to do। And also ये कहना कि लोग, मैंने आज ही एक सोशल मीडिया पे, और मैंने भी सोशल मीडिया अब ज्यादा सीखा है बिकॉज आई वांट टू स्प्रेड दिस व्हाटएवर आई वांट टू वर्क एट, कि किसी ने कोई पीडोफिलिया हुआ है, and it was again somebody from the clergy, and I have said let's not call him an imam anymore, we can call him a pedophile impersonating as imam, क्योंकि हमने उन अल्फाज को और उन डेजिग्नेशंस को भी मैला कर दिया है। कुछ लोगों ने की है गंदी की खराब काम कर रहे हैं, मौलवी कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन के मजहब गंदा हो गया, दैट डज नॉट मीन के द मैसेज इज रॉन्ग, द कैरियर्स ऑफ द मैसेज आर रियली टेरिबल फॉर नाउ बिकॉज तालीम नहीं है, सोच नहीं रहे। That doesn't mean our religion is wrong। आप पढ़ लीजिए जितना आपको समझ आ रहा है, but do it with acceptance। बट आई थिंक अपनी अगर आपने कम्युनिटी साफ करनी है तो एक एक्सेप्टेंस तो जरूरी है। अगर आप क्रिश्चियन क्लर्जी की भी बात करें, पेडोफिलिया इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन दैट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक मूवी में एक लाइन थी जिंदगी तमाशा में, और मूवी बंद करा दी, इवन दो कोई इंसान नहीं है जो डिनाई नहीं कर सकता कि पेंडेमिक सिस्टमैटिक मदरसों में इट्स प्रेवलेंट। तो आई मीन इट्स नॉट सेइंग कि यार ये एक इंसान इमाम नहीं था, ये एक पेडोफाइल था, ये एक क्रिमिनल था, बिकॉज इतने ज़्यादा मौलवी साहब, इतने ज़्यादा कारी साहब, इतने ज़्यादा वाक़े हैं, तो किसी कारी ना, साहब ना कहो ना शहजाद, बट क्यों ना कहें जब वो कर नहीं उसी नहीं, आर में रहे हैं ये काम, आड़ में तो कारी साहब नहीं कहेंगे। पर वो उनको He कोई प्रोटेक्ट was, नहीं कर रहा। no, you call him a pedophile who was doing the work of a qari। बट देयर इट्स द प्रॉब्लम इज दैट इट्स बिकम सिस्टमैटिक, राइट? कि लेट्स से मैं कमेडियन हूँ, हमारे कॉमेडी कम्युनिटी में एक इंसान है जो पेडोफाइल है, वो करते हैं, बाकी पूरी कॉमेडी कम्युनिटी अगर उसको प्रोटेक्ट करे तो कम्युनिटी में एक मसला है ना। द प्रॉब्लम इज के एक नहीं है कारी साहब, देर हजारों, और बाकी जो हैं वो उनको कॉल आउट नहीं करते। या तो बाकी जो अच्छे मौलवी हैं सारे वो मिले, बोले यार ये 10-15 लोग हैं जो मसले हैं। If they're going to protect those 10-15 as well, then there's a problem in the community. It has nothing to do with religion. It's these again, people who so are exploiting religion. we are calling the problem to the community। कम्युनिटी को कह रहे हैं, परपेट्रेटर को कह रहे हैं, जरूर कहिए, लेकिन अगर आप उस शोबे को, उस प्रोफेशन को ना कहिए। But वो बाकी लोग इस प्रोफेशन में उसको डिफेंड कर रहे हैं ना, that's the problem. If everybody in the profession stands up for the criminal, then that professional community needs to take a good hard look at themselves. मजहब से उसका कोई ताल्लुक नहीं है. We're not linking it to Islam. We're not linking it to... as a therapist, what I would say is we are taking things from specific to general। तो जब आप किसी को बुरा भला कहते रहेंगे तो चांसेस हैं बुराई फैलेगी। We are reinforcing negativity in a very very careless generalized manner। We have to really go after them। We have to call out कि मजहब के नाम पे ये काम किया कैसे, this is the biggest blasphemy। But get into what all is bothering us। हम लोग साइड ट्रैक हो गए, आप लोग क्यों नहीं बुरा कह रहे, आप लोग क्यों नहीं बुरा कह रहे, भाई हम क्या कर रहे हैं? मैं और तुम भी तो सोशल मीडिया पे बैठे हैं ना, तो हम सबको हल्ले को बनाने के बजाय जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस पे काम करें, so that we can get somewhere। And we have to say it। We can demand the community
whatever, but each one of us will have to take responsibility. अभी यही एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, ये क्यों नहीं कह रहे, वो क्यों नहीं कह रहे, इन्होंने क्यों नहीं किया, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि कोई भी क्लर्जी अगर ऐसा करेगी तो क्लर्जी पूरा तबका के बजाय हम उसको वो नाम देना बंद कर देंगे. First and foremost, we'll strip him of any respect that he has had. That I can do. फिर आप कल जाके चलें उनके खिलाफ FIR कटवाएंगे, पुलिस वाला FIR काटने से मना कर देगा. आपने लड़कर FIR कटवा दी, FIR कटेगी, अगले दिन उन पे केस होने से मना कर देगा. लॉयर आएगा, वो केस लेने से मना कर देगा. उसके बाद जज उससे मिला हुआ होगा. We can call it out, we can say what it is, but there is also a system that's in place to protect. Either we all acknowledge that the system itself is a problem and that all needs reform, and we change all of that. शहजाद, ऑल वॉल पे तो तुमने अपने आप को नलिफाई कर दिया ना. We all, आए तो आया ही नहीं इसमें पूरे नैरेटिव में तुम्हारे. Either I change the entire system. Entire system नहीं कर सकता. I will do whatever I can to make whatever difference I can. मैंने सुसाइड पे बात करनी शुरू की at a time when it wasn't very easy. When it was not very easy. Some very senior people in suicide, जिन्होंने PhD किया हुआ है, doctors and psychiatrists, they said, Athiya, you'll get a lot of flack if you go public with it. And I am a psychotherapist. मेरे लिए professional suicide था. आप क्या कर रही थी? आपके बच्चे ने खुदकुशी कर ली. But सच और झूठ, and मेरे पीछे कोई भी इदारा नहीं खड़ा था. एक औरत बोलना शुरू हो गई. एंड मैं तुम्हें ये बता दूं, दुनिया में जितने बड़े काम हुए हैं, शहजाद, मेहदी साहब हैं, अतीब साहब हैं, उन्होंने किसी इदारे का इंतजार नहीं किया, किसी सिस्टम के ठीक होने का इंतजार नहीं किया. एंड दैट इज द पावर ऑफ इंट्रापर्सनल. मेरे शौहर, हमें कुछ नहीं पता था. मेरे बेटा वाज ट्रेनिंग टू बी अ फीफा कोच, और उसने अक्सर कहता था कि लियारी के बच्चे जो खेलते हैं, हम लोगों को भी गेम्स जिताते हैं, KU के लिए भी खेलता था. तो वो कहता था मेरे लाइसेंसेस हो जाएंगे. I'd like to have a academy, a world class academy in Liari sometime. वो चला गया और हमें भी like parents, my husband was just grieving in the first few weeks. कि माँ का ये दिल था, चलो मैं 2 बच्चों को ही फुटबॉल लियारी के सिखाता चलूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. हम तो we sell ourselves short. सिर्फ मुंह से कहने की, अपने आप को इजाजत देने की जरूरत होती है कि हम ये करें. आज 2 साल हुए सिर्फ मेरे बेटे को गए इस दुनिया से. लियारी की एकेडमी जो है, वहाँ 200 बच्चे हैं. इयन रश पाकिस्तान आया, हमारी एकेडमी है. कैसे हुआ ये? We have no clue. We have no clue about football. हम 40 साल से 35 साल से कराची में रहते हैं, हम तो लियारी गए भी नहीं थे. मोस्ट नोटोरियस एरिया. ये कहना कि सिस्टम जब ठीक होगा तो जब हम कुछ करेंगे, नो. We start. और आप लग जाए. It's like Shawshank Redemption. आप एक कांटे से खोदना शुरू हो जाएं. If you sit and wait for the system to turn around, it's going to be a very long. No, you fight the system, but it's a tough battle. It's not easy. Just ना आपका अपना profession. A lot of people who study this, who know this, they also discourage you. For कि जी लोग क्या कहेंगे. It might speak to you as a professional. And एक African proverb है कि when you're standing next to the elephant, you can't see the elephant. You'll see the trunk or you'll see the leg. Yeah. It's only when you're far removed कि आप किसी पहाड़ से देखें तो you're like ये पूरा elephant है. So you might know everything, but once it's next to you and you're involved, it's very hard to see the signs, even if they're there. It's hard, but it's not impossible. I always have the option of moving back and closer to the elephant. I'm alive. And ये जो अल्फाज है ना, हमें ये डिस्करेज करते हैं. हार्ड है, इम्पॉसिबल तो नहीं है. और देखें कहाँ तक जाता है. वैसे भी तो कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ हम कर लेते हैं. तो जब हर शख्स उम्मीद के साथ सुबह उठेगा, पर्पस के साथ अपना बिस्तर छोड़ेगा, या शक और वसवसा शैतान डालता है. अगेन पार्ट.
तो we are constantly doubting ourselves, fearful of ourselves, uncertain, कुछ भी नहीं होगा, मायूसी होगी, which is why the 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 mood around us is so despondent. It is so. आप सिर्फ ये सोचिए, मेरा बड़ा दिल करता है मैं अलास्का क्रूज पे जाऊं, बस। अब ये तो बहुत ही हवा की बात है ना, बट कहने में क्या जा रहा है। फिर ये होगा, अच्छा मैं थोड़े थोड़े पैसे डालूं, अच्छा फिर आपकी नजर भी जाएगी कौन से क्रूजेस पे डील आ रही है, कहाँ से क्रूज चलते हैं। हो सकता है अलास्का नहीं जाओगे, हो सकता है थाईलैंड का कोई क्रूज लगा दे, आई डोंट नो। बट फाइंडिंग दैट मिडिल बैलेंस ऑफ आपकी ड्रीम क्या थी, आप कहाँ तक क्या कर किया आपने, एज अपोज टू सब बैठे सबने 1.5 घंटे बुराइयां की, सिस्टम कितना खराब है, खुल के नेगेटिविटी को रीइंफोर्स किया, उसको खूब एनर्जी दी, अपने घर आ गए और बोझल दिल लेके 2 गोलियां भाग के सो गए। सो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर हम अस्पताल में भी डालते हैं किसी को, इलाज भी करते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर। आप हॉस्पिटल भी जाते हैं ना शहजाद, किसी भी बीमारी के लिए, वो आप उसको कहते रहे मैं रात भर सोया नहीं था, लेकिन वो 7 बजे उठा के आपको नाश्ता करा देंगे, 8:30 बजे बिस्तर चेंज होने आएगा, चाहे आपकी टांग टूटी है, पाँव में तकलीफ है, वो उठाएंगे 2 बंदे। स्ट्रक्चर, रूटीन इज द फर्स्ट थिंग फॉर हेल्थ। और मैं ये नहीं कहती 7 बजे उठना है, अभी आजकल पैंडेमिक है, मेरा 16 साल का बेटा है, वो रात भर गेम भी खेलते हैं, वो उसके बाद दिन में देर से 12-1 बजे 2 बजे सो के भी उठते हैं। अब मैं अगर पुरानी जैसी माँ हूं, मैं कहूँ कि भाई ये तो गलत है, रात दिन भर सोए पड़े में उठ के क्या करें, बांस पे चढ़ा दो इनको, कुछ काम दे दो इनको, क्या काम दूं, मैं कर रही हूँ कोई काम, मैं तो अपने कंप्यूटर में अपने काम पे हूँ, उस बच्चे को क्यों उठा के बिठा, वो अपनी ट्यूशन करता है। जब आप उसको थोड़ा सा स्टेप बैक करें, इजाजत दें, वो खुद कहेगा मैं सोचूं ये कर लूं, मैं सोचूं ये एक्सरसाइज कर लूं, आई वांट टू टेक दिस क्लास। जरूर प्रेशर, जो चीजें, अब अल्फाज के वापस आ जाती, प्रेशर, mistrusting our youth, having all only the negativity and fear for our loved ones, these are the things that are causing a lot more problems. मेरे बेटे ने एक वीडियो छोड़ी थी before he took his life, and he says that life is good, but I don't believe I'm worthy of so many good things coming my way. He was working, he had 3 FIFA licenses, he was going to graduate, he was, हमसे उसने 3 साल से पैसे नहीं लिए थे, he was, but he couldn't stomach the good things. इसका मैं क्या जवाब दूं? He said to me, हमारा घर बहुत different है, the whole world is very different. तो दुनिया को कोशिश करती हूँ जो सुन ले मेरी बात, पर you know, और ये कहना कि मैं अक्सर, मुझे लोग बुलाते हैं, मुझसे पूछते हैं पेरेंटिंग, ग्रीफ, डिनायल, व्हाटएवर, and sometimes I feel like a fraud कि मैं क्या बता रही हूँ, and that is the time that I speak to myself, judging myself, is it going to do anything for my son, for my other 2 children, or respecting myself and knowing what I do with पूरी genuineness के साथ, नियत के साथ कि किसी और का कोई भला हो जाए. That is, I mean, it's not easy, yet it's easier than sitting and withering away and wasting away my life, my home, and my other 2 children. That's a buy-in. Very rare on the podcast that I don't have much to say. Uh, the point is never कि आप discouraged हो या negative सी के अंदर डूब जाएं. It's what you're combating. When I talk about the system, I don't mean कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ सिस्टम बहुत वो है. It's this same ideas कि सब जो reinforce कर रहे हैं, हम सबको मिलके उसको बदलने की ज़रूरत है कि why is just existing not enough. कि अगर कोई अपने बच्चे को जाके कहता है कि ये करना है, जो भी करना है, या जो भी स्टैंडर्ड्स अपने सेट किए, it's just
just the fact that we're here, just the fact that we're alive, just the fact that we breathe is enough. तो जब स्कूल आप जाते हैं और बोलते हैं नहीं भाई आपके ये स्टार नहीं आए तो बस कुछ नहीं है आप, या आप कॉलेज जाते हैं, जो जॉब करते हैं, स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हुए हैं. When I talk about this, I mean we need to, everybody individually needs to build a more empathetic world. एक इंसान, हर इंसान को फोर्स करना कि नहीं तुम जंग लड़ो, तो हमने आर्मियां सेट क्यों की हुई हैं? We, yes, if they exist you need to fight them. If everything around you is negative you need to fight it, but while we are asking people to fight we also need to reduce the battles that they have to fight. And I know मैंने थोड़ा लाइट हार्टेड वे में कहा था कि नेक्स्ट जनरेशन है, बट आई डू थिंक आई एम समवेयर इन द मिडल ऑफ द टू जनरेशंस. आई एम 31. So when I see these 18-year-olds, yes, they need to be more positive. Yes, they need to, जब उनके O levels के grades बुरे आते हैं, and I was working at KGS, working at Lyceum, या उनके ब्रेकअप हो जाते हैं, they feel the end of the world, I'm not going to tell them कि जी पागल हो गए हो, तुम्हें क्या मसले हैं, सीरिया में बच्चे मर रहे हैं. And I'm also going to, it's a finding a balance between कि it's not the end of the world कि तुम्हारा breakup हो गया, but also acknowledging that you right now feel like it's the end of the world. It's not being dismissive of that, while also giving them that hope, and also building a world that doesn't judge people if they don't get A stars, that doesn't Yes. judge people if they don't get a 1 lakh रुपए की नौकरी. It's these, both these battles that need to be fought together. So वही बात आ गई ना कि जिस वक्त उस पर कोई भी तकलीफ आई है तो उसको तन्हा ना छोड़ा जाए. अगर उसका ब्रेकअप हुआ है या नंबर नहीं आए तो उस वक्त ये कहना नहीं एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं, एंड ऑफ द वर्ल्ड तो बड़ी दूर है. अभी तो उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा. He suddenly found himself in a dark pit. यार it sucks. भाई क्या हाल है बताओ, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, क्या करोगे, अम्मी अब्बा क्या करेंगे? Just creating a partnership. Because we can't say my अम्मी अब्बा खराब हैं, we can't say कि तुम सब ठीक हो जाएगा. He'll figure it out himself. You trust that resilience in human beings to figure it out. And I tell you, Shazad, I अपनी तसल्ली के लिए मैंने I started to sit with, have a support group for mothers who've lost their children. और मुझे तसल्ली होती थी क्योंकि मेरे पास बहुत लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह, बट बेचैनी सी होती थी, मजा नहीं आता था किसी के साथ, कोई घबराहट. फिर एक औरत मेरे पास खातून आई है, शी हैड लॉस्ट हर सन, एंड मुझे उनके साथ लगा कि किनशिप है. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अ सपोर्ट ग्रुप. जब किनशिप जो होती है ना कि इसको मेरी बात समझ आ रही है और वो पूरी दुनिया को कभी नहीं आती, और आप फिर अपने को डाउट करने लगते हैं, ये सब इतने प्यार से आ रहे हैं, खाने भी ला रहे हैं, सुबह से रात तक मेरे पास बैठ रहे हैं, मेरे आंख के इशारे पे लोग खड़े हैं पानी का ग्लास टिश्यू पेपर लेके, बट मुझे तो नहीं चैन आ रहा. एंड दैट वाज माय रियलिटी, दैट इज समटाइम्स माय रियलिटी. और वो एक बिल्कुल स्ट्रेंजर औरत ने आकर मेरे साथ भी हुआ था, एंड एकदम से आई काइंड ऑफ ट्यून्ड इन. सो किनशिप and the ability to be with someone who gets you, which is why बाहर के मुल्कों में आपको अगर कोई बीमारी है, डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप्स हुए हैं, सिंगल पेरेंट फैमिली के, finding that community थोड़ा सा एलिवेट करती है आपको. जो ये आपको ये महसूस हो रहा था ना मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, ये बड़ा परेशान कुन मरहला होता है, और उस वक्त आपको लगता है कि मेरे साथ ही हो रहा है, मैं ही सबसे ज्यादा कोई मसला मेरे साथ है, अब चाहे अल्लाह नाराज है, चाहे माँ बाप का मैं बुरा बच्चा हूँ, बट you're never, इतने लोग हैं, कोई ना कोई आप जैसा होगा, उसको ढूंढ लेना, उसके साथ इजहार ख्याल करना, उसके साथ शेयर करना, मुझे ये हो रहा है तुम्हें ये हो रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो किनशिप, हम ख्याल लोग. अब क्या होता है कि हम बातें तो करते हैं, बहुत से लोगों से बातें करते हैं, मगर हम टाइम का पास कर रहे होते हैं, हम बातें करके आ जाते हैं, बट कोई डीप बात नहीं होती, बस सुपरफिशियल सेफ बातें की जो रूह तक पहुंची नहीं, ये दिमाग और इधर ही अपर चेम्बर में घूम घाम के बाहर निकल गई.
ना तो योर हार्ट इज इन्वेस्टेड नॉर इज योर सोल इन्वेस्टेड. सो आपके अंदर से खाली होते जाते हैं. और ये कोई बहुत फिलोसफी लंबी नहीं है. एक बच्चा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है. अब वो कह रहे हैं मैं एस्ट्रोनॉट, सबने कहा पागल, वो पाकिस्तान से एस्ट्रोनॉट कैसे बनेंगे, हम अब्बा बस पैसे देखें. बनना रियली कहाँ से ये आइडिया आया? जस्ट बी इंटरेस्टेड. दो बातें हैं ना, हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी की तरफ से बात लेके आगे बढ़ रहे हैं, या अपनी इनसिक्योरिटी अपनी कमी का एहसास करने. आपको मुझे क्या पता, हो सकता है अगले 20 साल में उसकी कोई निकल आए ऑप्शन और वो कर ले. मिसेस खत्री हैं, सबीना खत्री, हु वर्क्स इन लियारी किरण फाउंडेशन. के स्कूल पे एक बच्ची थी, उसने कहा मैडम आई वांट टू बी, लियारी की बलोच बच्ची, आई वांट टू बी अ मरीन बायोलॉजिस्ट. आप सोचिए, सोच की उड़ान देखें. और मैंने पूछा तुमने ये सीखा कहाँ से, हाउ डिड यू कम अप विद दिस प्रोफेशन? कहती है हमारी फैमिली में ज्यादातर सब मछेरे हैं, तो अगर मैं ये तालीम ले लूं, और अगर मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं इतना कुछ आगे निकल गई हूँ अपनी फैमिली से ऑलरेडी, तो कोई ना कोई राह अल्लाह खोलेगा. अगेन मिसेस खत्री समबडी, अकेली जान औरत, काम शुरू किया था उसने, कहाँ से कहाँ गई, कितने जहनों को खोल दिया. So the real work is, what can I do? खुद ही को कर बुलंद इतना. खुद ही is your sense of self, and God will be subservient to you and ask for your will before He writes your destiny. It's unfortunate that the last thing we teach people to protect is the self. I think we, जो आप एक्सटर्नल उसकी बात कर रहे थे, हमने एक्सटर्नल गोल्स तो बहुत आसान हमारे सेट कर दिए. सेल्फ डिस्ट्रॉय भी हो रहा है तो हो जाए, अगर जॉब तुम्हें मल्टीनेशनल में करनी है या तुम्हें ग्रेड्स लाने हैं, सेल्फ को तो प्रायोरिटाइज ही नहीं करना. सो when it's almost like it seems like the world is designed to attack yourself, whether that be social media preying on your insecurities or consumer products deliberately being designed to cash in on your insecurities, या अगर आप पार्लर जाते हैं और पार्लर वाली आपको जलील करती है, सेल्फ को तो हर जगह से अटैक ही हो रहा है ना. एंड वो कमोडिफिकेशन हो गई है कि पैसे कमाओ या तो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा हो, सेल्फ की तो इतनी कोई वर्थ नहीं है उसमें. तो उसमें जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि वर्थ, आई एम नॉट वर्दी, ये जो फीलिंग है, आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस फीलिंग. आई एम नॉट वर्दी, एंड Yes. नॉट worthy of something, यार. Oh, I'm not worthy of coming first or being the best. It's just I'm not even worthy of existing and taking up this much space. कि जितना मेरा जिस्म है physical, I'm not even worthy of this. What does one do when ये feeling है? बताऊं बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में, वर्दी के मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं बेमोल हूँ, जो भी ऐसी सोचें आती है ना, थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कर लें. इसका क्या मतलब है? मेरा मोल कौन लगाएगा? मेरी क्या कोई कीमत लगा सकता है? और हम इंतजार में रहते हैं कि कोई थेरेपिस्ट या कोई अम्मी पूछेंगे आराम से. नहीं, हम सिखाएंगे अपने बच्चों को, वो खुद खड़े होंगे उसके लिए, और हो रहे हैं. एंड कई दफा वेस्टर्न सोसाइटी ज्यादा कि ओ द मिलेनियल्स दे हैव नो थ्रेशोल्ड, हर बात उनको बुरी लग जाती है, हर बात पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाती है, काले को नहीं मजाक करो, ये नहीं. सो द process has started. The process has started of gauging right and wrong. And we all have to be open to change and a changing world rather than closed off and keep looking at the back. पुराने टाइम पे कब जाएंगे? नहीं जा रहे. गुजरा हुआ वक्त कभी भी नहीं आता. It's always going to be a newer time. So मोल लगाना या कोई भी नेगेटिव सोच जब आती है, उससे घबराने के बजाय उस सोच को देखें कि कहाँ से आ रही है, ये मुझ में क्या, कौन सी फीलिंग्स को लेकर आ रही है, मुझे मेरा मूड खराब कर रही है, मुझे घबराहट हो रही है. और मैं कोई भी अपने जानने वालों में जो भी मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है आपका ड्राइवर हो सकता है पान वाला हो, उससे जाके कहें यार मैं कई दफा सोचता हूँ मेरी तो कोई कदर कीमत ही नहीं है. That's it. Therapy is taken care of. You don't need to go to a therapist.
आपको पता होगा कि कौन एक ऐसा शख्स आपके पास है जिससे मैं कोई भी बात कर लूं। वो आगे से अगर कह दे और कि हाँ पानी सही वाली तो मियाँ, कहते अरे हैं मियाँ सारे, क्यों ऐसे सोच रहे हो, कब से सोच ऐसी आ रही है। बट अगर उसने आगे से कह दिया कि हाँ सही तो कह रहे हैं, तेरी कोई कीमत नहीं है, जा दफा हो, तो क्या करोगे आप? वो आदमी आपकी पसंद का नहीं होगा। ट्रस्ट योर सेल्फ। हो सकता है कोई दादी के पास जाएगा, कोई किसी के पास जाएगा। अगर आप अपने को वो स्पेस और अपने को ट्रस्ट करें, यू विल नेवर गो टू अ पर्सन। और ये बनेगी अगर आप मेटाबलाइज्ड है टू गो टू रॉन्ग पीपल। इफ यू मेटाबलाइज्ड टू अब्यूज, then maybe yes, it may happen and you may be harmed, but more than likely our psyches are very strong. किसी वजह से अशरफुल मखलूकात कहता है ना अल्लाह, or the superior beings. So I'm saying, let's start to just believe today कि यार I'm utilizing very little of my own potential. होगा कुछ नहीं तो वो मैडम इतनी बातें करके गई हैं, देखूं तो सही, ढूंढता हूँ मैं भी कोई। So आज एक और भी न्यूज आई हुई थी सोशल मीडिया पे, देयर इज अ 16-17 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक चाइल्ड, और उसके क्लास फेलोज ने पूरा ग्रुप बनाकर, it's just the worst, most vile imaginable things that they've said. My first inclination after reading that was to demonize these 15-16-year-olds, and then I took a step back and I was like, yeah, हम कर क्या रहे हैं in terms of cyber trolling or cyber bullying? What culture are we creating where a 15-year-old or a 16-year-old is not evil? एक 15-16 साल का कोई spawn of चक्की तो नहीं है कि वो evil हो। वो या तो कुछ सोसाइटी ने कोई वैल्यू प्लेस की है कि दिस इज अ गुड थिंग टू डू टू बुली समबडी, या अगर आप सब मिलके किसी इंसान को बुली करेंगे तो आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। So the what culture are we creating where these things happen far too common for anybody's liking? And again, I've worked some of the most elite schools in this country, and it's a prevalent problem there. yes absolutely. and once again मैं फिर उसके स्कूल्स के हवाले से, जब आपका पोटेंशियल, फ्रॉइड ने कहा है, when your energy is not channelized, when your libidinal energy is not channelized, it will turn into aggression. तो जब हमारे अंदर के पोटेंशियल्स को राह नहीं मिल रही, उनको चैनल नहीं किया जा रहा, उनको तो दबाया जा रहा है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। अग्रेशन ईदर एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल भी हो रही है, यही बुलिंग, घटिया मजाक, मजाक का लेवल कितना घटिया हो चुका है कि हम दूसरे की दिल आजारी करके हंसते हैं। इससे ज्यादा पस्ती तो कोई हो ही नहीं सकती, चाहे वो किसी रेस का, किसी के रंग का, किसी के वेट का मजाक उड़ा के अगर हम हंसते, तो सबसे पहली चीज है, मैं कैसा इंसान, मैं कौन। एंड यही छोटे छोटे लेवल की क्वेस्ट्स एंड क्रूसेड्स हैं। जहाद वहाद तलवार लेके कोई भी नहीं जा रहा अब जहाद करने। दीज आर द क्रूसेड्स कि जहाँ जुल्म होते देखें वहां हम कुछ कह सकें। मैं अपने घर में खानदान के बेसिस पे लोग ससुराल वालों को बुरा कह देते हैं, एंड ससुराल वाले ससुराल का लेबल लगाए बगैर इंसान ही है ना, मेरी तरह की औरत या मर्द हैं आपकी तरह के। तो जस्ट बिकॉज उसको ससुराल कह दिया तो दे हैव टू बी डीमोनाइज्ड एंड इविल? नो। इंटरपर्सनल आप देखें तो सही कि वो आपके साथ कितना बुरा है और आप उसके साथ कितने अच्छे हैं, है कि नहीं। आप क्या कर रहे हैं, मेरा इनपुट क्या है अपनी जिंदगी में, जो भी मेरी जिंदगी के रिसोर्सेज, जो भी मेरी जिंदगी के सर्कमस्टांसेस हैं। Shazad, we've been put, I think, on this earth with a set of circumstances, each one of us different. How we respond to our circumstances is only the call that we can make. And this COVID is really bringing all the energy all the attention back to ourselves. ना तो इसी अस्पताल में कोई बड़ी हेल्प होनी है हमारी। It's all making us be very very cautious and careful कितने लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि कोई भी पूरा 24 घंटे घर में नहीं बंद है। तो we are all making choices। दुकान पे जाना है, अच्छा मैं अपनी अम्मी से मिल लूं कि नहीं, अच्छा मैं किससे थोड़ी देर सड़क पे जाके मिला हूं। So we are making choices। खौफ से बना रहे हैं। I don't think choices खौफ से, सौदा लेने तो जाने ही जाने, सौदा तो खाना तो पक्केगा ही। So we are making choices, we are proactively planning। अल्लाह पाक अगर
I like to talk about Allah. बहुत से मेरे young Fine, man. audience, you know, हो सकता कोई है तुम लोग को नहीं, तुम नहीं 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 करोगे, but audience ये इतना अल्लाह रसूल कर रही हूँ मैं, मेरी उम्र है भाई. नहीं बिल्कुल So I'm ठीक just है. saying, I yes. whatever works for everybody. मेरे तो ये लाइफ फिलोसफी Absolutely. है, जो जिसको जो बात करनी है, as long as वो डंडा लेके दूसरे इंसान को ना मारे. So I'm just cognizant कि young लोग are not so religiously But inclined. वो So जो you हमने can call पहले it बात anything. की, it's the same कि it's been used as a stick for so long कि वो Pavlovian reaction हो जाता है कि वो जब mention आता है, you're almost like इसी डंडे से तो मुझे सारी जिंदगी मारा गया है. And then once you use the same terminology for love, it's almost like an abused dog where कोई इंसान उसको खाना कहता है, like wait, इसी हाथ से प्यार भी मिल सकता है, ये तो मुझे सारी जिंदगी abuse किया गया. So it's not कि religion as a concept is abusive, it's just that unfortunately it's been used as such by too many people that a lot of people get triggered. And it's again power है. चाहे वो आर्मीज की तुमने बात की थी, रिलीजन की बात की थी, ये सब जब कोई भी मैसेज अच्छा होता है या कोई भी टेरिटरी अच्छी होती है तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. एंड सो आप क्या करते हैं कि आप अपना एक माइंडसेट एक मासेस के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं. एंड द फर्स्ट थिंग यू डू इज आस्क देम नॉट टू थिंक, नॉट टू क्वेश्चन. But I'm asking, question yourself, constantly explore where what thoughts are coming to you. जो ये है ना कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो गया है, लेकिन और उसका मैं समझती हूँ कि नाराजगी के बजाय ये कि कुछ सिखाना चाह रहा है. और एज अ माँ, अगर अल्लाह मैं अपने बच्चे से नाराज भी हो जाऊं, लेकिन वो बच्चा जो है कुछ भी और एफर्ट करने के बजाय मेरे पास आके बस रोए जाए, अम्मा प्लीज ठीक हो जाए, अम्मा आई एम सॉरी, अम्मा आई एम सॉरी, आई विल गेट वेरी इरिटेटेड. And I will say, go fix this thing, let's do things better. But यहाँ बैठ के रोते रहोगे तो क्या फायदा होगा? And I will get more irritated. So as Musliman also, it's time for us to think, what could we do better? How could we be doing things better? Rather than कि बस सजदों में सर मार मार के रोए जाएं और फिर अल्लाह मियाँ, दैट्स आल्सो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के सब कुछ वो करके दे दें, हम अपने को नहीं चेंज करेंगे. So I think the crux of the call is that जिंदगी अल्लाह का एक तोहफा है, and it's a beautiful gift. And when was the last time that we really spent time, energy, interest on this gift that we are the custodians of? Let's unwrap it. Let's figure out all that we are capable of doing, and we can only do that by starting, what do I really want in life? कुछ भी आप कह सकते हैं, इजाजत दें अपने आप को, मेरा दिल चाहता है मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊं, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊं. राइट इट डाउन एंड देन सी अपनी जिंदगी रोजाना जो गुजारते हैं, मैं इसके जा सकता हूँ, करीब नहीं जा सकता हूँ. मायूसी से उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को देखने के बजाय, ऑब्जेक्टिव को देखने के बजाय आप ये देखें कि आज मैंने उसके लिए क्या किया. बहुत से यंग बच्चे होंगे जो जॉब नहीं कर रहे. कहना आसान है, मेरा भी दिल करता है, आसान जरूर है 6 फिगर की जॉब मिले. अभी आज मैं 500 की जो कोई काम पकड़ूं, वो 500 will go towards that. So that's how you motivate yourself, not wait for others to. As good as advice, as good as any advice to close this off. If you can't see any meaning in your life, find meaning. Go out, be happy to be alive. I think जो आपने कहा कि जिंदगी एक gift है, just the fact that we exist, just the fact that we're here, there's a lot to celebrate and there's a lot to be happy about. Thank you so much for joining us today, and thank you so much for giving us this much of your time. It's quite admirable and it's quite brave what you do, and hopefully आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. एंड इससे बेहतर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी क्या कर सकता है कि आप किसी दूसरे की मदद करें. एंड people who are struggling and people who are probably going through the worst, if they can see some light after listening to you, I think you've done more than what a human being should do. So thank you so much on behalf of everybody. Thank you. And thank you everybody for listening. Take care. Bye bye.